little bit of Dale Steyn kind of action and rhythm in him. You just watch his run up, just has that Dale Steyn kind of feel. Short cut away to the fence. Poor delivery. Such a great first ball, and the second ball just asked for trouble. Smashed through the offside. Ruhail Nazir is such a classy wicketkeeper batsman. Just got first ball cut, always stayed positive with his intent. And good to see him bat on his normal number and just stayed at it. Wide off across off stump, just a beautiful cut shot executed. Tell you what, I don't think our fellow commentator Sikandar Buff has noticed. He's so partial to wicketkeeper batsmen, and last 4 games he's been saying Ruhail should bat up the order. I think if you've seen that Ruhail has come in at number 3, he'll be jumping up in joy. He wants Sarfraz batting up the order, Rizwan, Ruhail, any wicketkeeper, he wants him batting up the order, and he's still not happy. He wants Ruhail to open. Started off well. He played one of the games, he came out and hit 2 sixes right off the bat. Started off with a boundary today. Pullum's just lost his length slightly. That first ball was absolutely perfect. Looks as if he gets the ball to just hit the seam. And he's just gone slightly shorter, which has allowed Ruhail the luxury of just batting it through cover. Running that first run hard, waiting for that misfield, but no. A nice single down to third man. Now, usually teams don't make these changes when they're undefeated and they're on a winning streak. But it is something new to see today that Northern is testing their bench strength, but they've also shuffled their batting order. It doesn't look like Ruhail Nazir was getting much innings or much time at the crease, playing down the order the last 4 games. But it is good to see how he's been promoted to go express himself. Drifted onto the pads and picked away. Umar Amin collects a neat boundary. The end of the second over, it's 15 for 1. For 1 after 2. Ruhail and Umar Amin already have a boundary each. Akif now, he needs to get a wicket quickly because they need a start which they can drive home. Khurram Shahzad have provided them with initial breakthrough. They just need to. Well, it is difficult to build pressure and keep on taking wickets, as we mentioned before. Look at the field, you've got to slip in for Ruhail Nazir and a regulation offside field. So you're guessing that the ball will angle away from him. Just for that ball, Bazid. Just shaping away off the seam. This pitch has slowed down, so it's not really nipping away. But Akif in the last 2 overs has been right on the money, bowling towards his field. And yes, Balochistan will have to get another quick wicket
in this power play. Northern bats really deep, but now with the pitch slowing down, the role of Yasir Shah and Osama Mir is vital on this pitch. Oh, what a delivery. What a delivery. That seamed back, cut Umar Amin in half. And that's gone at good pace. Too good. Maybe he should have bowled a lesser delivery and got the wicket, which that was just extraordinary. Too good by Bismillah Khan right there too. Just moving to his right. This ball, once it crossed the batsman, it usually wobbles and swings away late. But just watch the ball closely, stay nimble on his feet, and collected that nicely. Lovely bowling, balls angling back into Umar Amin. Ace is up. The only thing, if you're hypercritical, the only thing is slightly too short, which is allowing Umar Amin to defend off the back foot. You want him defending on the front foot. That'll bring in the LBW, that'll bring in the inside edge. And with the pace that Akif has, I think he just 6 inches fuller, he'll be in business. Like that, that's a better option. Nicely played. But he does like to drive, so you're in with a chance if you hold that length. Both teams have improved tremendously since last year's National T20. This is a rematch between the last year's finalists. Both have started this tournament strong. Quick single, and nicely done. 17 for 1. Told that it's Khurram Shehzad's T20 debut and he gets the wicket on the very first delivery. Last season he played in the second 11, so could have a better start hitting off stump. Well, he could have a better start to hit middle stump and get that cartwheeling, but he'll take off stump. Goes down the ground and middles this one nicely into the fence for a boundary. That balance, that flair. Umar Amin showing all his class with this lofted shot over mid-off. Just nice, base was strong, and all he had to do is pick it up over the infield for a boundary. Umar Amin has really taken his time today. He's trying to maximize his opportunity. Just running that first run hard, taking his time at the crease. Better length, just back of the length. We've seen this the first game as well. Fast bowlers bowling back of the length, difficult to get away. Even spinners, slightly shorter length ball sticks in the wicket. It's difficult to hit through the line. Once you go searching full, slightly becomes easier.
And that's the message being passed for higher soil as well. You don't need to go full. Just keep at it. Just keep hitting the length, back of the length. Hit the wicket hard. Exactly like that. Players were talking last game how the length ball is not really coming onto the bat that well. We've noticed this game too, how even the way Imam got out in the first inning, just up and down the track, how he likes to play his favorite shot, but just getting rushed, just not being able to connect properly. Timing has been a little bit off for both teams so far in this match. But getting into their fourth, fifth game of this season, since it's doubleheaders against each, and then we're going to go to Pindi next. By now, teams have really figured out what their best 11 lineups are. Oh, good sharp bouncer for a single. But these are those opportunities for those players who are coming off the bench, like Khurram Shahzad, who get that one-off opportunity to make an impact, to make a name for himself and get part of that bowling lineup for the remainder of games. Last ball of his second over, looking for that delivery to nip back in. Very first ball he bowled in T20 cricket, with the ball coming back in, nipping back in. You want one that nips back in and ends up on the stumps. Goes for the bouncer. And has been given a wide. Certainly got bounce in the pitch. Just get a feeling with Khurram Shahzad that he actually is quicker than he looks. And he's hitting the bat higher up, whereas batsman would expect to be hitting the middle of the bat, and he sort of hits the splice more often than not. He's skitty for sure. You can just tell by his intent and his run-up with this follow-through that he really bends his back and puts his max effort every single ball. Quick single. 4 done. It's 24 for 1. चौबीस पे एक खिलाड़ी आउट, 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल। एक और मंजर थोड़ा ग्राउंड से बाहर शहर, और मौका मुझे तो नहीं मिला, आप काफ़ी बार आ चुके होंगे। एक बार फिर लाइव एक्शन की तरफ आते हैं। बहुत सी ऐसी जगहें हैं, खासतौर पर मुल्तान शहर जो कि नोन है इन सूफी श्राइन्स के, आपको विजिट करें तो आपको पता चले, आपको से मतलब जो लोग देख रहे हैं कि कितनी हिस्ट्री है यहाँ पर। यहाँ ये सिटी ऑफ सेंट्स कहलाता है मुल्तान। अगर आप शहर की तरफ जाएंगे, घंटा घर की तरफ, तो वहाँ जूतों में बहुत ज़्यादा जो यहाँ के रिवायती जूते हैं, खुस्सा, बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। अब तक बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया दोनों ही पेसर्स ने। सिर्फ साथ खुर्रम थे। ये आप देख सकते हैं, ये घंटा घर का इलाका है, यही शाही ईदगाह है। आगे चलकर सिकंदर, कितना आपने एंजॉय किया अपने स्टे को यहाँ मुल्तान आने के बाद? बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा ये एक ख्वाहिश रही कि रात के टाइम पे सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर कर सके, लेकिन क्योंकि यहाँ से बहुत देर में फिनिश करती हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब
आप या मैं या हमारे बाकी साथी आएंगे। इनफैक्ट इसका जिक्र हमने किया भी है कि जिम्बाब्वे सीरीज़ जो है वो शुरू होगी। जिम्बाब्वे पाकिस्तान का टूर कर रहा है। उस सिलसिले का पहला मैच जो वनडे इंटरनेशनल है वो यहाँ खेला जाएगा 30 तारीख को। और जो इस पे मेहनत से काम करने वाले लोग हैं वो शायद 28-29 से यहाँ पहुँच जाएंगे, तो उसमें उनको मौके मिलेंगे। तीनों ODIs यहीं पर है। ऐसा कोई मैच जो यादगार हो, जिसका ताल्लुक मुल्तान शहर से हो, जो आपके जहन में बड़ा क्लियर हो? सबसे पहले तो वही टेस्ट मैच आता है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, और पुल कर दिया बड़ी खूबसूरती के साथ। इस बार बिल्कुल खातिर में नहीं लाए। उमैद हासिफ के हाथ में नई गेंद है, लेकिन इतनी आसानी के साथ इसे बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया उमर अमीन ने। जी हाँ, टाइम मिला यहाँ उमर अमीन को। गेंद की लेंथ ज़रा छोटी थी, शॉर्ट थी, तो बैक फुट पे जाने का टाइम मिला। और क्योंकि अभी भी सर्कल चल रहा है तो उनको सिर्फ ये 30 यार्ड्स क्रॉस करने थे। तो आप बता रहे थे टेस्ट मैच का। जी हाँ, वो मुझे भी याद है, जिसमें फिर फूल निछावर किए गए थे इंजमामुल हक पर जब वो टेस्ट मैच ख़त्म हुआ था। अकेले उन्होंने आखिर तक फाइट दी थी। फाइट गेंद का फ़ायदा नहीं उठा सके। उस टेस्ट मैच में जब इंजमामुल हक पहली इनिंग्स में आउट हुए थे तो वो बताते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट का इरादा कर लिया था, और रिटायरमेंट उसी शाम अनाउंस करने वाले थे, क्योंकि वर्ल्ड कप 2003 में भी नाकाम रहे थे। उससे पहले जो टेस्ट मैच था उस सीरीज़ का, उसमें भी नाकाम चले आ रहे थे। तो उन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर थे उनको बाकायदा कह दिया था कि आप प्रेस को बुला लीजिए, आज शाम मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ऊंचा शॉट खेला है, दोनों मिड ऑन मिड ऑफ के दरमियान से गेंद को 4 रन के लिए खेल दिया। उम्दा शॉट, दूसरी बाउंड्री इस ओवर में उमैद आसिफ के। बड़ी खूबसूरती के साथ खेला। आसान नहीं होता मिडिल ऑर्डर में खेलने के बाद आकर नई गेंद फेस करना। उमर अमीन ने ऑन द अप इस बार ये शॉट लगाया। उनकी बैटिंग की हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। बड़े अच्छे टीम मैन हैं, किसी भी पोजीशन पर खिला लें। ऐसे प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो कि उनको बैटिंग ऑर्डर में कहीं भी कोई रोल दिया जाए उसको वो निभा पाएँ, अपने कप्तान की एक आवाज़ पर वो पहुंच जाएं और परफॉर्मेंस भी दे पाएँ। आखिरी गेंद ओवर की, बोट किया अपना रनअप। तो उस कहानी की तरफ वापस आते हैं। इंजमामुल हक को दरअसल किसी ने ये मशवरा दिया कि आप रुक जाइए, दूसरी इनिंग का इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद फैसला कीजिएगा अपने करियर के मुतालिक। फिर यही हुआ। 2 दिन के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। न सिर्फ पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत गया बल्कि एक नई तारीख रकम हो गई। इंजमाम वहाँ से कप्तान भी बन गए वो सेंचुरी बनाने के बाद। राशिद लतीफ़ कप्तानी कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उस मैच में। ओवर मुकम्मल हो गया 33 पर 1। आज के इस मैच को अगर हम एक बार फिर थोड़ा सा जायजा लें अभी, बल्कि ओवरऑल पूरे दिन की अगर आज बात करें, जो कि आज 7वां दिन है इस टूर्नामेंट का, आहिस्ता आहिस्ता रन्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं इस विकेट पर। जहां सुबह जब टॉस हुआ तो हमारी ऐसी उम्मीद थी, जब बात हुई मोहम्मद रिजवान से कि भाई 180 आराम से बनते हैं, कोशिश करें 200 तक जाएं, लेकिन फिर पावर प्ले का खेल देखें, करीबन 48 बनाए सेंट्रल पंजाब ने पावर प्ले में, 57 बनाए तकरीबन इस तरह से उनके मुखालिफ टीम केपी ने। और आज भी वो फ्लरिश नज़र नहीं आई पावर प्ले में अभी तक जो हम देख रहे हैं। 34 पे 1, 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो गया है। थोड़ा सा सरफेस स्लो होता जा रहा है। इतना ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होगी क्योंकि आखिरी दिन है। और अब हम रावलपिंडी की तरफ अपना रुख करेंगे, जो कि 9 तारीख से वापस मैचेस शुरू हो जाएंगे। वहाँ की विकेट के बारे में थोड़ा बताएं, कितना फ़र्क होगा? आपने काफ़ी वहाँ पे कमेंट्री की है।
एक और जोरदार शॉट, एक और चौका उमर अमीन का। सेटल नहीं होने देना चाहते, स्लॉग स्वीप किया उन्होंने यासिर शाह के खिलाफ। यासिर शाह ने इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक काफ़ी तेज़ गेंद की है और वो आते भी बड़ी तेज़ हैं। मीडियम पेसर की तरह रन अप है उनका, फ्लाइट कम दी है, लेकिन ज़्यादा करामत भी वो इसी तरह से कि बॉल तेज़ी से गुजरती है, उनका जो गुगली होता है वो बड़ा तेज़ होता है। हाल ही में इन्होंने अपनी गुगली पर काफ़ी काम किया है। मुश्ताक अहमद जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बने हैं, उसके बाद से इनकी गुगली मौसर लगी है पहली बार। ज़्यादा स्टंप्स में बॉलिंग करते हैं, रफ्तार तेज़ रखते हैं, एलबीडब्ल्यू बोल्ड, इसी सूरत में ही ज़्यादातर विकेटें मिलती हैं। रावलपिंडी की पिच का सिकंदर आप पूछ रहे थे, पाकिस्तान में सबसे अच्छी क्रिकेट विकेट शुमार होती है। अच्छी बैटिंग विकेट है, बाउंस मिलता है वहाँ पर, फास्ट बॉलर को रन्स भी बनते हैं। स्पिनर्स के लिए अलबत्ता इतनी मदद नहीं होती। शॉट, 4 रन फाइनली हासिल कर लिए। कोशिश उमर अमीन ने पहले की थी, लेकिन यहाँ रोहेल का ये शॉट, रोहेल ने बड़ा इम्प्रेस किया है। हालांकि इतना मौका नहीं मिला उनको इस टूर्नामेंट में अभी तक, काफ़ी नीचे बैटिंग करने आया था। अच्छा लगा कि शादाब ने उनको ये मौका दिया कि वो अप दी ऑर्डर जाके बैटिंग करें, और हैं भी टॉप ऑर्डर के। अच्छा कॉन्फिडेंस है इनमें, और ये नहीं देखते कि सामने कितना बड़ा बॉलर है, बॉल की मेरिट पे शॉट लगाते हैं, अपने कंट्रोल में नज़र आते हैं शॉट खेलते हुए। कायदे आज़म ट्रॉफी में भी पिछली बार इनको देखा, टेम्परमेंट भी है, लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं और अच्छा शिफ्ट करते हैं अपने गेयर्स जब शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में आते हैं। इस बार चार्ज किया, गेंद बल्ले के नीचे स्लिप पे लगी है, लेकिन सेफ जोन में ही जाएंगे। पावर प्ले अभी भी चल रहा है। 2 रन मुकम्मल किए रोहेल नज़ीर ने इस शॉट पे। रोहेल नज़ीर का जिक्र कर रहे थे, आज पहली बार टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं। उनका जो मिडल ऑर्डर है वो इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक ज़्यादा टेस्ट नहीं हुआ। इससे 1-2 विकेटें अगर यहाँ पर गिरती हैं तो पहली बार उनकी आजमाइश होगी, क्योंकि शादाब खान 28-30 रन की इनिंग्स खेल चुके हैं। अगले ओवर में इस पर बात करेंगे 45 पर। ये जो टूर्नामेंट नेशनल T20 हो रहा है यहाँ मुल्तान में, और इसका अगला लेग रावलपिंडी में होगा, इसको इस बार डबल लीग बेसिस पे किया जा रहा है। इसकी जो खास वजह है वो ये है कि ICC वर्ल्ड T20 जो 2021-22 में होनी है उसको नज़र में रखा हुआ है। PCB ने चाहते हैं कि जो प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले खेलने के। मिनिमम 10 मैचेस मिलेंगे हर टीम को, और इससे हेल्प ये होगी कि जितने भी सेलेक्टर्स हैं और इवन फ्रेंचाइज ओनर्स हैं PSL के, वो नए टैलेंट को खोज सकें, देख सकें। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हमने अब्दुल्ला शफीक को यहाँ पे उनका टैलेंट जो है डिस्प्ले पर देखा था। जिशान मलिक बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं, तो अच्छा एक निकाला है नया कॉन्सेप्ट डबल लीग, यानी हर टीम एक दूसरे 2 बार खेलेगी। ये अच्छा रन बनाया, ऑफ साइड में गेंद को गिराते ही दौड़ पड़े उमर अमीन के साथी भी तैयार थे। और जब इतना लंबा टूर्नामेंट हो जाता है तो फिर जो सबसे ताकतवर टीम होती है उसी की जीत के इम्कान बढ़ते हैं। टूर्नामेंट जितना शॉर्ट होगा, पहले हर टीम दूसरी टीम के खिलाफ एक ही बार मैदान में उतरती थी, इस बार दूसरा मौका भी होगा। अभी तक नाकाबिल शिकस्त है नॉर्दर्न। आज की शाम ये इतना आसान नहीं है इस पिच पर, क्योंकि टारगेट बाज़ाहिर आसान लग रहा है, लेकिन कदरे थकी विकेट अब दिख रही। पुल कर दिया, 4 रन जरूर हासिल होंगे। खासी शॉर्ट बॉल थी, फिर भी अच्छा कंट्रोल कर गए यहाँ पर रोहेल नज़ीर। जानते थे कि फाइन लेग डीप है, काफी फाइन खेला है इसको। यह गेंद उनकी तवक्को से ज़्यादा तेज़ आई थी, बाउंस भी हुई,
क्योंकि छोटे कद के हैं इसलिए कंट्रोल नहीं कर सके। 50 रन मुकम्मल हो गए नॉर्दर्न के इस स्ट्रोक के साथ। ऑन साइड में इस वक्त लॉन्ग ऑन है, स्क्वायर लेग और फाइन लेग पर फील्डर हैं बाउंसर के लिए। फिर बैकफुट पर खेलने पर मजबूर किया, लेकिन इस वक्त अब बेहतर शॉट था, लाइन में आ गए थे रोहेल। तो रावलपिंडी की जो पिच थी उसका जिक्र कर रहे थे। हालिया जो PSL का सीज़न था इसमें वो सबसे अच्छी बैटिंग पिच साबित हुई थी। ये 4 वेन्यूज़ इस्तेमाल किए गए, कराची नेशनल स्टेडियम, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। और पिंडी पर जो रन बनाने की औसत थी टूर्नामेंट की औसत, वो 9.6 थी, यानी 180 से भी ज़्यादा रन बनते रहे हर बार वहाँ पे। सीधा शॉट, ये पहली बार नहीं जब उमर अमीन ने इतना सीधा स्ट्रोक लगाया है और 4 रन हासिल किए हैं। रूम बनाया अपने लिए और खेल दिया बॉलर के ऊपर से 4 रन। उमर अमीन बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं, तजुर्बा भी है, जानते हैं कि इस पिच पर क्रॉस द लाइन खेलना ख़तरे से खाली नहीं, और ये बेहतरीन तरीका है निगोशिएट करने का। अगर आपने ओवर द टॉप जाना है बॉलर के सर के ऊपर से खेलिए। डबल लीग का एक और फायदा भी है जो हम बात करते हैं, हर टीम को 2-2 मैचेस मिलेंगे। जैसे कि नॉर्दर्न अभी तक 4 में से 4 जीता है और साउदर्न पंजाब एक भी नहीं जीता। फिर भी अगर वो बाकी मानदा मैच जीत जाता है तो इस टूर्नामेंट में अलाइव है। तो अभी भी उनके पास हाफ वे थ्रू इतने ही मैचेस बाकी हैं और अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से ओपन है। और इस मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में नॉर्दर्न की टीम ने जो ज़्यादातर अपने नौजवानों को आजमाया, उनको मौके फराहम किए। अली इमरान को खिलाया गया, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड किया। उनके अलावा जीशान मलिक वो आज नहीं खेल रहे, उनको आराम दिया गया है। वो कि सुहेल अख्तर अब तक नहीं खेल सके। हारिस रऊफ से बॉलिंग में ओपनिंग कराई गई, पहली बार हमने देखा वो नई गेंद कर रहे थे। अच्छा लगा ये देखकर, हौसला अफजाई कर रहे हैं मोहम्मद वसीम और शादाब खान नौजवानों की। बड़ी हैरत की बात है कि एक फ्रेंचाइजी कप्तान जो है वो अभी तक मैच नहीं मिला। और मैं सोच रहा था कि जब आज जीशान मलिक नहीं आए तो शायद इनकी टीम में शमूलियत हो और उनको एक मौका दिया जाए। फरजान राजा भी अभी तक नहीं खेल सके, लेग स्पिनर। अगर आज जीतता है नॉर्दर्न तो उनके पास, अभी भी ना भी जीते तो उनके पास इतना क्वेश्चन है, इतनी एबिलिटी है कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 57 for 1। गेंदों पे 52 की पार्टनरशिप रोहेल और उमर अमीन के बीच। 78 गेंदों पे 100 चाहिए हैं यहाँ से नॉर्दर्न को। तेजी से मुकम्मल किया, प्रेशर डालते हुए फील्डर पर डीप में, लेकिन अच्छा ग्राउंड भी कवर किया है यहाँ। डीप से दौड़ते हुए आए थे खुर्रम शहजाद। ये मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के फॉर्मर बैट्समैन। अच्छे कोचेस में शुमार किए जाते हैं। दोनों ने मिलकर बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन तश्कील दिया है, रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। बुगली को पुल किया सीधा हाथों में लॉन्ग ऑन के, और अकबर रहमान ने कोई गलती नहीं की, थोड़ा नीचे बैठे लेकिन अपना तवाज़ुन नहीं बिगड़ने दिया, और इन फॉर्म उमर अमीन को उन्होंने वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ट्रैप जो बिछाया था वो कामयाब हो गया। गेंद जो है वो काफ़ी लो रही, बैक फुट पे जाके जोर लगाना पड़ा उमर अमीन को आखिर में इस गेंद को बाउंड्री लाइन पार कराने के लिए, और वही हुआ जिसका डर था। गेंद जो है वो सीधा फील्डर के हाथों में गिरी और इस तरह से इनिंग्स जो है अख्तिताम पर पहुंची। 30 बनाए, बड़ी शानदार खेल रहे थे 25 बॉलों पर, लेकिन अब उनकी वापसी। 58
for 2. आसिफ अली नए आने वाले बैट्समैन हैं। 76 गेंदों में 99 रन की ज़रूरत है। रन बनाने की औसत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो दरकार औसत है सिर्फ 7.8 की है, लेकिन समझ बूझ कर खेलने की ज़रूरत है। ये आज के इस दिन की इस दूसरे मैच में स्पिनर की पहली विकेट थी। गेंद जिस तरह सिकंदर ने कहा नीचे रही, अगेंस्ट द टर्न भी खेले थे, इसलिए भी फासला तय नहीं कर सके बाउंड्री का उमर अमीन। अच्छा लो कैच लिया वहाँ पर अकबर रहमान ने। ये विकेट मुस्कुराहट वापस ले आई है यासिर शाह के चेहरे पर। उनको मैंने हर हाल में हंसते देखा है, जैसे हर हाल में क्रिकेट, वैसे हर हाल में वो खुश। अक्सर देखा गया है कि जब बहुत ज़्यादा रन्स भी दे देते हैं तब भी आप खुश खुशी देखते हैं इनको। उनके कप्तान से पूछें जो आपके पीछे खड़े हैं। ये अजहर अली अगले स्टंट में आएंगे तो यकीनन इस पर बात करना चाहेंगे। इसे लेट कट किया, बड़ी खूबसूरती के साथ खेला गया स्ट्रोक था, थोड़ा खतरा मोल लिया रोहेल ने। स्वीप शॉट खेलते हैं, कट शॉट खेलते हैं, ये उनकी खूबी है। 4 रन्स मिले जी। दूसरी कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि रोयल बैकफुट पे ही खेलने गए थे इस शॉट को। बड़ा फाइन खेला। थर्ड मैन हालांकि सर्कल के अंदर है, इससे भी ज्यादा बीट करना, लेट खेलना ही बनता था उनका। थोड़ा अपिश रही गेंद, लेकिन मिड विकेट पे सर्कल में कोई नहीं। तो बताते चले कि ये टूर्नामेंट जो है 2021 और 2022 में जो मुसलसल ICC T20 वर्ल्ड कप्स होने हैं, ये उनको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनेकाद किया है। डबल लीग पर फर्स्ट 11 मैचेस का मुल्तान और रावलपिंडी में ओवर मुकम्मल हुआ 65 पर 2। This chase has been set up really nicely, although it's a long way to go still, but Northern are placed very nicely here. Steady proceedings. Asif is now in the middle with Rohail. He's played brilliantly. I mean, with authority and control, attacking bowlers. It's a big appeal there, and there was a noise as well. And Usama Mir feels that he got an edge. Well, that was a confident appeal. Yeah, umpire actually didn't hear anything. It was more of a bat hitting the back leg. The wickets, what Balochistan really need at the moment, and they got two leg spinners on the attack. This is a part of the US $200 million agreement with PTV Sports and iMedia Communication Services
The event is being produced by the PCB Broadcast Live and live on PTV Sports. Wanted to attack Usama Mir. Was in the air for a while, but landed in no man's. Yeah, probably it can be a no ball because I think Usama has chopped, stumped his hand, took off the bails, and that can be a free hit. Asif Ali on strike. A surprise for the batsman. A no ball from a spinner, and it is because he hit his back leg to the stumps. It's a 6. It can't be out. It's all right, but he didn't see that coming. I think he lost it in the light. It cost 6. He could have easily stopped that, but he lost it in the background. He ducked it. Meher Asif just signaling that lights were in his eyes, but 6 runs costing on that no ball. I wanted to ask you, being a captain, if you were to pick a T20 side, would you prefer specialist or all-rounders? Come on, boy, come on, Sama. It depends how good an all-rounder you are. Easy, Sama, The all-round ability is always good in this format. And you see Shadab Khan, you see Imad Wasim, Muhammad Nawaz. And at the end of this over, it's 76 for 2 Northern. Come on, Yasir bhai, come on, Yasir bhai, come on, boy. Number 3, come on. Shaji. Easy. Yasir Shah continues, and Rohail Nazir likes the cut shot. And it was short enough for him, and he placed it perfectly. Oh, he has been delight to watch, Rohail. I've seen him taking on bowlers in the first game he played, but this time, right on money, cut sweetly, and 4 runs. Come on, boy. Haris is looking up to Yasir Shah, his experienced bowler. Oh, nearly chopped on. Ball kept a little low. Balochistan needs this luck. They need wickets. Come on, Yasir bhai, shabash. Easy. Nicely played towards mid-off. 1s and 2s will do for Northern. And Yasir Shah will try and keep the ball in Come on, boy. at the stump, so anything they miss. Wanted to go down, but that's good running. Comfortable too there. Rohail at the end, good check. The length wasn't there, so he just chipped it towards the onside. Yeah, you should be aware which ball to pick to play. That's good running. You would be expecting your strike bowlers to take wickets. First time, but. They're doing it very comfortably at the moment. A boundary and a couple of 2s. Turning out to be a decent over. Yasir must do something for his team. Come on, Yasir bhai, come on, boy, come on. A wicket, wonderful delivery by Yasir Shah. That's what
it was expected from him. Nicely flighted, got some turn, and a quick work from the wicketkeeper. Let's see whether he was short of his crease or not. Brilliant bowling. That's how you need to bowl on this wicket. Nicely tossed up, inviting the batsman to just lean forward, and a bit of club work, and yeah, they got their man. Ruhail was in such sublime form, but now it's the end of his innings. Yeah, nice bit of work by Bismillah Khan. And he was long way out. And Yasir provides a breakthrough which was needed badly. You can see on the big screen, OUT very soon. Here he goes. Ruhail Nazir looked good. Played a nice little knock, 42 of 27. Northern are 86 for 2 now, for 3. Hamad Azam comes in. Come on, boys, shabash. And Asif Ali is on strike right now. Yeah. Nicely bowled by Samamir. They need to build a bit more pressure. Balochistan, they got a wicket. Come on, They need to go bang bang. wahi zara, shabash. Nice bit of work at fine leg. It's never easy when the ball is coming, swirling at you. It's good from Northern. They've got so many options. Grip Shuffling kar raha hai, the ball, batting order, shabash. trying everyone out, giving the confidence. That's how a champion Yeah, team na? would do. Shabash. Catch it. Up in the air. हाँ, यार, मुंह में आ गया. Has he got enough? Yes, he has. A 6 of Asif Ali. It's another 10 trees will be planted by PCB and Tuck. Have a look at that. Tossed up right in the zone. Solid base and just the hand stocking. Straight down the ground for a massive 6. Easy. रुकेगा. Try to go रुकेगा, inside first out. time It will be easy too for Asif Ali again. Good running. I was keen to see Samamir and Yasir Shah utilizing the break Come on, Sama. that Keep we've trying, seen boys. a Keep bit trying. Come earlier on. from the wicket. They're not usually doing. Easy. It won't be a bad idea for Haris to Very well done, Sama. Very well done, Sama. roll his arm because boy, come on. he can turn the ball and Now, Somi, come on, can Somi. be a Come on, surprise boy. Come on, Somi. package for Shabba, boy, obviously shabba. he himself knows he can bowl. Inside out again, but this time it should be only one. Oh, bad misfield there. That was lazy effort from Umaid Asif. And our finishes with this boundary. You do not want to see this kind of effort. Umaid Asif let the ball roll over him. That's poor. That's really poor when you're defending a target. Come on, guys. Come North on, now everyone, 98 come for on. 3.
Praveen talking about players, let's talk about the umpires PCB has appointed. They're the elite umpires for every match and elite match referees. That's good opportunities for the umpires out there. They need tournaments like this and backing of PCB. It's overall a good tournament. Hamad Azam he just got an opportunity today. He's playing his first game. Obviously, if you're playing after a long time, you need to spend time in the middle. But he got an ideal partner in shape of Asif Ali. Oh, lucky again. Yasir Shah has been bowling really well. Just a little bit more luck. That's the sort of ball I want to see Yasir bowling every now and then, tossing it up, inviting the batter to drive. They put a bit more pressure on Hamad Azam here, because they need wicket, back-to-back wickets here. Yasir Shah is bowling well. Do something different. Can't really contain the batsman. We're just 49 balls to go and 56 runs to get. Just over a run a ball. Beautifully bowled, and at the end of 12th over, Northern 101 for 3. ज़्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए। यहाँ से 48 गेंदों में 56 रन बनाना है, 7 विकेटें हाथ में हैं। टीम फॉर्म में है, बैक एंड पर मुख्तलिफ तजुर्बात कर रहे हैं। गो के मोहम्मद वसीम, हैदर अली वो आज बैटिंग करने के लिए अभी तक नहीं आए, पहले वन डाउन खेल रहे थे। रुहेल नज़ीर को आजमाया गया, कुछ देर पहले यासिर शाह के हाथों आउट हुए। हमाद आजम हैं 2 पर, आसिफ अली ने 18 रन बनाए हैं। हमाद भट्ट को पिछले मैच में 12वें ओवर में बॉलिंग मिली थी, आज 13वें ओवर में मिली है। वाजिद खान, पिछले मैच में भी मुझे अजीब सा लगा था कि नए बॉल से बॉल इनका स्विंग हुआ, और जो पहले 2-3 मैचों में इनको नया बॉल मिला तो उन चंद बॉलर्स में से ये एक थे जो कि बॉल को स्विंग करा रहे थे। तो वो एक इनका वेपन जो है, अगर आप 13वें ओवर में या 12वें ओवर में लाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, क्रिकेट के खेल में कई बार कुछ जो है चीज़ें मुअम्मा होती हैं, ये उन्हीं में से एक है कि इतनी देर से एक इनफॉर्म बॉलर को आप क्यों लाए हैं जबकि आपको विकेटों की ज़रूरत है, आपने रन्स भी रोकना है। तो ये सफ़े अव्वल के बॉलर्स में से हैं, और ख़ास तौर पर आज जब उमर गुल भी नहीं खेल रहे तो इनको पहले लाया जा सकता था। बिल्कुल, जब आप कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा बॉलर खिला देते हैं और फिर उनको यूटिलाइज सही नहीं करते। जब ऑप्शन कम थी तो इमाद भट्ट को नया बॉल मिल रहा था, अब शायद ऑप्शन ज़्यादा है तो उन्होंने सोचा कि इमाद भट्ट को थोड़ी देरी से बॉलिंग करवाएं। लेकिन मेरे हिसाब से जो इस टूर्नामेंट में हमने देखा है, बहुत कम बॉलर्स ने बॉल को स्विंग किया है और बहुत कम बॉलर्स ने उसका फ़ायदा उठाया है।
इन्होंने शुरू में जो बॉलिंग की, इनका बड़ा अच्छा बॉल, स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स को बड़ा अच्छा स्विंग हो रहा था, तो कुछ सरप्राइजिंग डिसीजन है। जी हाँ, हैरत इस बात पर भी होती है कि 6 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, 6 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ। अपनी बैटिंग पर क्या हद से ज़्यादा एतमाद है फैसल इकबाल और हारिस सोहेल को, या फिर एक नई अप्रोच है T20 क्रिकेट में? देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी बॉलिंग पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तो 6 बॉलर्स उन्होंने खिलाए। कह रहे हैं, जब भी हारिस सोहेल से सवाल हुआ है कि हम अपनी बैटिंग को बैक करते हैं, कि हम बैटिंग पहले करें और लंबे रन्स करें, उसके बाद क्योंकि एक बॉलर एक्स्ट्रा खिलाते हैं तो 6 बॉलर से हमें सुकून ये है कि ऑप्शंस ज़्यादा है हमारे पास। 104 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर आसिफ अली अब 20 के पेटे में चले गए हैं। 52 रन की मज़ीद ज़रूरत है। आपको बताते चलें कि ये जो टूर्नामेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त कोशां है नेशनल T20 कप को एक ब्रांड बनाकर पेश किया जाए। इसके लिए सफ़े अव्वल के क्रिकेटर्स यहाँ पर जमा हुए हैं। 45 इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल रहे हैं ये चैम्पियनशिप। दिन को मैचेस हुए हैं, फ्लड लाइट्स में मैचेस हो रहे हैं, हालांकि ये कोविड-19 के दिन हैं। तो अगर ये आती स्टंप्स पर तो इसी तरह सामने भागता पड़ता हम्माद आजम को। हम्माद आजम का भी पहला मैच है इस टूर्नामेंट में, तो वो भी ज़ाहिर है कोशिश यही कर रहे होंगे कि थोड़ी सी अपनी इनिंग्स बिल्ड करें। अभी तक कोई बड़ी शॉट का अटेम्प्ट नहीं किया, तो सिंगल जहां भी पॉसिबल है, तो ऐसा भी हो रहा है कि जहां पे सिंगल मुश्किल था वो भी उन्होंने ट्राई किया और शायद लकी रहे। कट करने के लिए अब आइडियल पिच नहीं है, क्योंकि इसमें उतनी रफ्तार नहीं रही। इनसाइड एज होकर आसानी से गेंद जा सकती है किसी भी वक्त स्टंप्स में। अच्छा ओवर रहा हम्माद भट्ट का, 13 के बाद 106 पर 3। सबसे बड़ी पार्टनरशिप 31 रन की हुई जो रोहेल नज़ीर और उमर अमीन के दरमियान थी। आज अपने बैटिंग ऑर्डर के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन अच्छा ये हुआ कि इनके बॉलर्स जो हैं उन्होंने ज़्यादा आजमाइश में जाने नहीं दिया, अपनी बैटिंग को महदूद रखा, सिर्फ 156 तक मुखालिफ टीम को। तारिक भाई, बॉलिंग नॉर्दर्न की बहुत की आला है, केपी की बहुत ही ज़बरदस्त है बॉलिंग। अगर हम बलूचिस्तान की बॉलिंग में नज़र डालें तो सिर्फ एक यासिर शाह हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। नॉर्दर्न की बेंच स्ट्रेंथ में भी ऐसे बॉलर्स थे कि उन्होंने सोहेल तनवीर की जगह जब आमिर को खिलाया तो तब भी उनके पास 5 इंटरनेशनल बॉलर्स थे। इस नेशनल T20 में जिस भी टीम के पास डेप्थ होगी बॉलिंग में, क्योंकि हमने देखा है कि आप मुल्तान के बाद जब रावलपिंडी जाएंगे तो वहाँ भी ऐसी पिचेस होंगी जो कि बैट्समैन इंजॉय करेंगे, जहाँ पे रन्स ज़्यादा होंगे और तेज़ रन्स होंगे, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप आपके लिए बहुत मुफीद होती है। और मेरे ख्याल एक्सपीरियंस और क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है वो डिफरेंस ज़रूर बनाएगी, क्रिएट करेगी। जी हाँ, और उसका सबूत जो है नॉर्दर्न के बॉलर्स ने 41 विकेटें लेकर दिया है। ये उनका 5वां मैच है।
मैच में तो सब मैचेस को मिलाया जाए तो 41 विकेट लिए सबसे ज़्यादा है ये तादाद। इसके मानी ये है कि उनके पास ही बड़े विकेट टेकर्स हैं। शादाब खान खुद भी उनमें शामिल हैं, टीम के कप्तान, फ्रंट से लीड करते रहें। और अगर नॉर्दर्न ये टूर्नामेंट जीती है तो 90 लाख का इनाम है। जो रनर अप है उसको 25 लाख मिलेंगे, जीतने वाले को के लिए 50 लाख हैं, तो ये 90 लाख सब मिलाकर है, टोटल 90 लाख। लेकिन इस वक्त खूबसूरत शॉट ऑफ स्टंप से बाहर, पहली दफा हमाद आजम को विकेट मिली और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। यहाँ क्योंकि जो फील्डर हैं ऑफ साइड स्वीपर इमामुल हक, ये तकरीबन एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पर थे, इसलिए कोई मौका नहीं मिल सका इस स्क्वायर कट को रोकने का और अच्छा टाइम करने में कामयाब हुए। बहुत पीछे रह गए हैं अपने हमवसरों के मुकाबले में। ये हम्माद भट्ट जब नए नए आए थे तो न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप खेला था, बड़ा मुतासिर किया था हर एक को इन्होंने। पाकिस्तान कई मैचेस जितवाए थे क्राइसिस में बैटिंग करते हुए। कि पाकिस्तान में एक रवायत है, जैसे ही इन्होंने खेलना शुरू किया तो पहले ही बोल दिया गया कि नेक्स्ट अब्दुल रज़ाक आपको मिल गए हैं। और कई ऐसे प्लेयरों से ये हुआ है कि उनका कंपैरिजन सीधा ही कोई बहुत बड़े प्लेयर से हो गया है और फिर थोड़ी सी ज्यादती होती है ऐसे प्लेयर के साथ। ये गेंद बल्ले पर लगी थी, 2 आवाज़ें आई हैं, दूसरे रन के लिए वापस मुड़ गए। अंपायर का इशारा देखना होगा, अंपायर का ख्याल था कि गेंद बैट से नहीं टकराई वलीद का। 14वां ओवर इख्तिताम को पहुंचा 115 पर 3। मुल्तान का मरहला अपने बिल्कुल आखिर में पहुंच गया है इस नेशनल T20 कप 2020 में। ये दोनों टीमों का स्कोरिंग ट्रेंड है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त पलड़ा भारी है। 36 गेंदों में 40 रन बनाना है, क्योंकि आखिर में कुछ ज़्यादा रन नहीं बना सकी बलूचिस्तान की टीम। और पावर प्ले में भी इतना खुलकर उनके बैट्समैनों ने नहीं खेला था, विकेटें गिरती रही थी। अब हम्माद को बॉलिंग करेंगे। थर्ड मैन फाइन लेग को पीछे भेज दिया गया। थोड़ी सी बात बीके हम बिस्मिल्लाह खान की भी हमें करनी चाहिए। आज तो ये ज़्यादा रन्स नहीं बना सके, लेकिन आज अच्छी विकेट कीपिंग की है, स्टंप किया है एक। ये जितनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जितना अच्छा इम्प्रोवाइज करते हैं, लोग इनसे मुतासिर क्यों नहीं होते? T20 क्रिकेट में तारिक भाई जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड सेट है विकेट कीपर बैट्समैन का, वो बहुत ही ऊंचा है। इतना ऊंचा है जितना आसिफ अली ने इस बॉल को उठाया। बहुत ही बड़ा छक्का। जी हाँ, आसिफ अली ने इस बार गेम को इस बात की परवाह किए बगैर खेला कि मिड विकेट बाउंड्री पर एक फील्डर हैं इमामुल हक, लेकिन उन्हें अपनी ताकत पर इतना नाज है कि इस बार अपनी क्रीज का इस्तेमाल किया, उसके बाद अपनी रिस्ट का भी बहुत ज़्यादा बुलंदी मिली, खूबसूरती से खेला गया ये स्ट्रोक था आसिफ अली का।
छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं पाकिस्तान भर में। आपको याद होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को टाइटल जितवाया था कराची में हसन अली को लगातार 3 छक्के लगाकर। बिस्मिल्लाह खान की आपने बात की, इन्होंने PSL 1 में एक मैच जितवाया था जहाँ पे आगाज़ में बिस्मिल्लाह खान ने रन्स किए और फिनिशिंग टच अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने दिए। तो उस टाइम ऐसे लगा था कि शायद इनका करियर जो है वो ऊपर की तरफ गामजन होगा, लेकिन फिर कुछ थोड़े इनकन्सिस्टेंट रहे। फिर सरफराज जब कैप्टन बन गए तो काफ़ी कीपर्स जो है वो बैकग्राउंड की तरफ चले गए, क्योंकि वो कप्तान भी थे, टीम जीत भी रही थी और ऊपर से विकेट कीपर भी थे। अब आप देखते हैं तो अब थोड़ी सी जगह है, अभी भी जो T20 की विकेट कीपिंग का स्पॉट है पाकिस्तान का, वो अभी तक किसी के पास मुकम्मल तौर पे नहीं है। ये अच्छा बाउंसर था, सर से नीचे थी। इस वक्त इनकी उम्र 30 साल है बिस्मिल्लाह खान की। अब से कुछ अर्सा पहले एक तनाज़े का शिकार हो गए थे, गुजरांवाला में मैच खेल रहे थे, जिसके बाद 1 साल की इनको पाबंदी का सामना करना पड़ा। वो भी इनका वक्त ज़ाया हुआ बिस्मिल्लाह का। उस वक्त ये पनप रहे थे बड़ी तेज़ी के साथ। चार्ज किया लेकिन यहाँ पर बाउंड्री नहीं मिलेगी। पहुँच जाएंगे उसामा मीर। कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। 32 गेंदों में 32 रन्स। अगर देखा जाए तो पहली गेंद से ही लेकर ये पलड़ा भारी रहा है नॉर्दर्न का अपनी हरीफ टीम पर आज। तारिक भाई, अगर आपको याद हो, शायद आपको तो सब चीज़ें याद होती है, जब एलेक्स स्टुअर्ट जब इंग्लैंड की टीम में आए थे तो ग़ालिबन उनके वालिद ने ये बोला था कि बैट्समैन जो कि उनका स्ट्राइक रेट या बैट्समैन जिस तेज़ी से बैटिंग करता है वो नेचुरल होता है और उसको सिखाना ज़रा मुश्किल, विकेट कीपिंग को इम्प्रूव कराना वो ज़्यादा आसान है। तो शायद पाकिस्तान को भी ऐसे कुछ देखना पड़ेगा कि एक बैट्समैन जो पावर हिटिंग कर सके उसकी विकेट कीपिंग पे काम किया जाए। 15 ओवर 127 पे टीम। वापस आ गए हैं खुर्रम बॉलिंग करने के लिए। पहले एक बैंक की टीम की नुमाइंदगी करते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं, हालांकि लगता नहीं है जब आप उनको देखते हैं कि ये इतने तेज़ बॉलर हो सकते हैं, क्योंकि इतने कदावर नहीं है। स्किड करती है इनकी गेंद, अच्छा एक्शन है, स्मूथ रनअप है। तारिक भाई, एक कन्फ्यूजन है, मैंने 2-4 लोगों से भी पूछा है कि इनका ताल्लुक कहाँ से है, कोई सही तरह बता नहीं सका। मंडी भाउद्दीन कह रहा है, कोई सरगोदा बोल रहा है, कोई अभी तक प्रॉपर जवाब नहीं आया इस बात का। सरगोदा से इनके मुतालिक बताया गया है, ये वहाँ से आते हैं, पहले हबीब बैंक के लिए खेलते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट। बलोचिस्तान की सेकंड 11 में गुज़श्ता बरस ये शामिल थे। जो इनके बारे में सुना गया है वो ये कि काफ़ी क्लेवर बॉलर हैं और वाइट बॉल में स्पेशली इनको पता होता है किस टाइम पे कहाँ बॉलिंग करनी है और लेंथ पे बहुत अबूर है इनको, चेंजेस ऑफ लेंथ इनकी अच्छी हैं। तो
जिस चीज़ से भी बात हुई है तो वो काफ़ी तारीफ करते हैं इनकी स्किल सेट पे। रन अप और छोटा कर दिया है अब 2 गेंदों के बाद। कोई काम एक्शन है, इस बार अंपायर ने वाइड का इशारा किया। ये बाउंसर फेंकना ये T20 और 50 ओवर के क्रिकेट में ये अग्रेशन के अलावा एक आर्ट भी है। इसमें आप बॉलर को ख्याल रखना पड़ता है कि गेंद कंधे और सर के दरमियान रहे, ऊपर ना जाए, उस सूरत में वाइड हो जाएगी जैसा कि इस बार हुआ। ये भी एक मतलब अब वाइट बॉल क्या इवन रेड बॉल में जिस तरह नील वैगनर बाउंसर करते रहते हैं, उनका बाउंसर ऊपर ना ज़्यादा ऊपर जाता है ना वाइड की तरफ जाता है, तो वो जो रिस्ट्रिक्शन है 2 एंड ओवर वो भी नहीं होती, लेकिन फिर भी मज़ीद शॉर्ट बॉलिंग करते रहते हैं। सरगोदा का आपने बोला, सरगोदा से बड़े अरसे बाद प्लेयर आए। एक ज़माने में सरगोदा की बहुत ही तगड़ी टीम होती थी, वहाँ से नवीद लतीफ़, मोहम्मद हफीज़, बिल्कुल ये उनकी टीम होती थी और मतलब 3 तो इंटरनेशनल खेल गए। फैसल अफरीदी भी करीब ही थे। सरगोदा में इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाती थी स्टेडियम में। वहाँ श्रीलंका की टीम आई थी 1991 में वर्ल्ड कप से पहले, तो वहाँ वनडे इंटरनेशनल हुआ था। तो सरगोदा से पहले मुल्तान की बात कर लेते हैं। यहाँ बाजीद कैसा रहा आपका स्टे इस क्रिकेट बबल में? मुल्तान से आपकी यादें तो बहुत हैं, आपने इंटरनेशनल करियर यहाँ शुरू किया था अपना। लेकिन यादें तो अब बन रही हैं क्योंकि एक हमारे साथ अब तो खैर हर टूर पे ही होते हैं, उनकी मुल्तान में इतनी वाकफियत है कि जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फ्री खाना मिलता है। बहुत फाइन खेलने में कामयाब हुए। इस बार ऑफलाइन हो गए थे और गेंद को रवाना कर दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 26 गेंदों में 28 रन की ज़रूरत है। ये ओवर कदरे खाली जा रहा था, लेकिन वो तलाफी हो गई इस बाउंड्री की बदौलत। करते चले 25 गेंदों में 24 रन की ज़रूरत है। पेस अगर होए तो कभी कभार नुकसान ये होता है कि थोड़ा सा ऑफलाइन होए तो इस आउटफील्ड पे स्पेशली जो कि बहुत ही तेज़ है, सिर्फ बल्ला मिलाना होता है। मिस फील्डिंग ये बहुत सी टीमों का मसला रहा है। शायद इस टूर्नामेंट में यही एक ख़राब चीज़ लगी है। 134 पर 3। (23 of 24). Once again, we're looking at a close finish here. It's been a while since we've seen a batting side crossing the line. Can Northern make it 5 out of 5? 134 for 3. Ahmad Butt gives it a full swing of the bat and a good start to the over with a boundary. One bounce into the extra cover fence. Big hit by Ahmad Azam right there, playing his first match in the slot, and it's placed to the boundary. As you see there, Ahmad Azam just showing his intent, showing his confidence. He's not played any matches, even last year was not part of their main plans, but just getting this one-off game. Northern can do nothing wrong. 5th game in, on cruise control, winning this one too, testing their best bench strength, and at the same time, all of these players performing brightly. Surely capable of going and hitting those big boundaries. Ahmad Azam. Standing tall off the back foot, good push there. Going good with the time as well. Shehzad might have a finish
just before time, because we've usually seen sides fielding taking too long and getting on with business. But today, it's not like we're chasing anything. Well, it is, the score is lower than usual, but in terms of overs, we're good. It's always good to see players speeding things up. Naturally, in international cricket, there's a time limit for everything, so it's good that they're staying on time, on par. Slow one, but he was ready for it, as if he knew that's coming. That's a massive hit. He wants to finish this match as quick as possible. We're just now 12 required of the remaining 21. Danger, Asif Ali. It was a slow back of the hand ball, but nice and juicy in the slot for Asif Ali to have easy pickings. We know he can hit these maximums. Like the way Northern is going, like they can do nothing wrong. Which team, in your opinion, you think will beat them finally, Sikandar? So now going hard at everything. Sheza, we've been talking about this tournament, how the new pictures look like. Of course, people like you being part of it, Bazir Khan, Tariq Saeed, and also we talk about officiating the game. We've got the PCB elite umpires and match referees for this tournament, and every elite umpire will get at least 9 matches, and every elite match referee will get 5 matches, which will provide every official a substantial amount of games in this tournament. It's a double league tournament, so 33 games in all. We're just halfway through as we exit Multan after this match. He's just reading the slower ones well. Now this could have been a catch. I don't know why Umaid Asif aborted. There's nothing to lose now. Like, it should have been an effort from Umaid Asif there, at least a try. But he just stopped short, just trying to save a boundary, but maybe could have gone for an effort there. Just noticing how this tournament is going right now. It's good to see Hamad Azam finally getting a game. It's a different feel playing in the nets, doing drills, getting ready for games. And it's just a different kind of confidence when you're playing in the middle with that rush. That's the kind of confidence when you're in the middle, it makes the most impact. Once again, Umaid Asif in picture, so he's the chosen one right now for the batsman. Another single. 17 gone, 148 for 3. Of 42, that's the partnership between the two. And now just 9 required of the remaining 3 overs. That's 18 deliveries. So Northern getting to another victory here. Should get it comfortably. Another clinical performance. That's a happy dugout there. You've got their head coach right on top, Mohammad Wasim. Next to him is their fielding coach, Mohammad Masroor. They worked hard, and the results are showing. Defending champions, Sheza. Last year's champions beat the same side in the final. A rematch of last year's finale. I just wanted to add, Sikandar, it's a great initiative by PCB of enhancing the match fees. Now with match fee for white ball matches set at 40,000 rupees, the double league format provides a high performing player to earn at least 400,000 Pakistani rupees. This is part of PCB's strategy and commitment
to enhance earning opportunities as well as reward high-performing cricketers. So eventually when you look at the northern side, they're spoiled for choices now. Even after making 3 changes, they're comfortably looking to win this match. 25 of 21 for Ahmad Azam, who's been included in the side today. He's performed for them. Smile has been good. Sohail Tanveer, where you can't just avoid him or ignore him out of your 11. You can just rest him. Zishan Malik is just resting out. Haris Rauf is resting out. Musa Khan is resting out. Whoa, you dare not put your hand to that. The fielders could just watch that ball fly past them. Ahmad Azam feeling really good. Doesn't look like he has not played any matches so far. Looks well in touch, confident with his approach, and just plays that 4 right across over extra cover mid-off. Now, these are good problems to have, Sikandar. Lahore Qalandar's captain Sohail Akhtar not even getting a game yet. As management, as just seeing these things, that even their bench strength performing so well, these are good problems to have for any team, that even when they tried something new, they still kept the same energy, they still enjoyed their cricket, and they're coming up with another W. And this time to the left of Hussam Amir. Won't be a boundary though. Just feel that the fielders out there, Balochistan, happening for a while now. 3 required of the remaining. Halfway through this tournament, and Northern is looking like they're going to be back-to-back champions if they keep this up end of this tournament. Boom! There you go. This, oh, it's gone through. I told you nothing's going right for Balochistan. And that's another boundary. Sums it up that Northern have won another match. They've got 5 out of 5. Unbeatable, or unbeaten I should say, up till now. So with that boundary, the Multan leg comes to an end, and another 2 points for the Northerns. They beat Balochistan today comfortably by 7 wickets, and they further strengthen their net run rate. Might not even need it because they've got enough points to sail into the semi-finals. Now, with 5 wins, they're sitting pretty with 10 points right on top. They haven't moved from there, by the way. Good performance all round from the Northerns. They were asked to chase today because the toss was won by Balochistan. They couldn't capitalize on that. We were talking about it halfway through the innings, that 157. And it doesn't seem like a score that would bother the champion side, the defending champions. And despite of the fact that they made 3 changes, and those 3 changes also performed for them. So they're looking good. Balochistan, on the other hand, they've lost this match, but they won't be too worried because they are sitting number 2, and they played well. They played good game up till now, and they also have a good balance going, just like KP, 3 strong sides in the tournament. So lots of fists around here, bit of handshakes, because they're all in a bubble. So they are segregated and separate from the rest of the world. Good win this, and hope all the players have enjoyed the wickets that were prepared here in Multan, because they gave us a lot of entertainment, lots of runs, good value for shots with the amazing outfield as we've been talking about it, and something for the bowlers in it as well. They bowled the good areas and looking pretty good. You'll get those results for yourself. We've seen bowlers winning it as well. 2 fifers for Shaheen Shah. We had Umar Gul getting 4 wickets yesterday. The spinners have also played a vital role, integral part in this tournament until now. So the men in red, Northern, 5 matches, 5 wins for them, and most of them have been comfortable wins. So they look a class apart at the moment from the rest of the boys. But still a long way to go, as it's a double league tournament. Everyone plays each other again in Rawalpindi starting from the 9th. And then we get the best one. That's the selfie. That's their ritual with their head coach Mohammad Wasim. Always takes the one after the victory. And this is how it is. So
wraps up match 14 with a 7-wicket victory for Northern. Let's have a look at the chase, how it went. The batting card shows us how Northern went about with the chase. I wouldn't call it a stutter, but they waited for their moment and they finished it off in style with Asif Ali 41 not out, Ahmad Azam 30 not out, comfortably scoring 158 in just 17.5 overs. The bowling card, we'll have a look at that. The bowlers struggled a bit. Wasn't much purchase available. 2 wickets for Yasir Shah, 1 for Khurram Shahzad of his very first ball of the first over. But that's about it. Bowlers didn't have much to play with because the runs scored by the batsmen weren't much. 158, easily done as I said, with an over and a delivery, or 2 overs and a delivery to spare. Balochistan won the toss, decided to bat first. 156 for 6. We thought for a while that this won't be enough because there's more available in this wicket, and that was the case. Northern with Ruhail's 42, Asif not out 41, got this match in the bag with 7 wickets to spare. So 2 more points for Northern, and that sums up match 14 and also the Multan leg. We'll be back shortly, and we'll get you the presentation of match 14. Till then, don't go back. साकिब भाई देखो आ रही है आवाज़ ओके ठीक है हेलो ठीक है गुड है I am talking. क्या किया इसने? रोहिल नजीर है भाई। रोहिल नजीर, लोअर नजीर। कहाँ खड़ा होना है यहाँ, ठीक है? सर आप इधर आ जाओ। इधर खड़े करते हैं बासी भाई को। एक सेकंड जल्दी है, जल्दी है। Alan is calling. Alan. Sir, Ruhail Nazir 42 runs. Welcome to the national T20 coverage. Let's head down to Bazid, who's got the 2 captains with him. Right, to start off this post-match presentation, we'll start with man of the match, which is Ruhail Nazir for his 42 runs.
He get a cash award of 25,000 rupees and that medal. रोहेल, बात करते हैं आपसे। पिछले मैच में भी और उससे पिछले मैच में भी ऐसा लगा कि फॉर्म बड़ी अच्छी चल रही है, शायद आपको बॉलें ज़्यादा नहीं मिल रही थी। जी बिल्कुल, मैं अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था क्योंकि मेरी बैटिंग लो डाउन दी ऑर्डर आ रही थी, लेकिन मुझे अपने पे बिलीव था कि जब भी जिस मौके पे भी बैटिंग मिलेगी तो मैं अपना पूरा 100% दूंगा और टीम के लिए फ़ायदा करूंगा। तो यही हुआ कि मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं किया, लेकिन यह है कि अच्छा डे रहा मेरे लिए। और कितना फ़र्क पड़ता है कि आपके मतलब बैटिंग बहुत ही लंबी है, तो जिस प्लेयर को प्रमोट करें या कोई नीचे जाए तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता? जी आई थिंक हमारे जैसे कम्बिनेशन बना हुआ है और जैसे हम लोग यंग प्लेयर्स हैं, सारे फॉर्म्स में हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो यही मुश्किल होता है कि किसको ऊपर भेजें किसको नीचे। तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है एज अ प्लेयर आपको परफॉर्म करना होता है, तो मेरी माइंड यही है और मैं कोशिश करता हूँ। आपने शादाब को बोला कि आपको ऊपर भेजें, मैं बात करूं, खुद तो वो ऊपर चले जाते हैं, आपको थोड़ा नीचे खिला रहे हैं। शादाब भाई ने यही बोला था कि अपनी बारी का वेट करना, आपको ऊपर बारी आएगी। तो मेरे जहन में यही था कि किसी भी मैच में मुझे ऊपर भेज सकते हैं, तो शादाब भाई ने हमेशा कॉन्फिडेंस दिया है, तो अच्छा हो। चले, वेल प्लेड एंड गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। अब हारिस सोहेल से हम बात करते हैं आज के मैच के बारे में। हारिस, आज कुछ प्लान के मुताबिक नहीं गया, आपको किस स्टेज पे लगा कि शायद मैच थोड़ा से आपके हाथ से निकल गया? देखिए बाज भाई, जब अर्ली आना आपके 3 विकेट इंपॉर्टेंट 3 विकेट गिर जाए ना, तो T20 में वापस आना मुश्किल होता है। कोशिश की थी मैंने और अकबर रहमान ने कि वापस आया जाए, लेकिन मुश्किल था कि जिस तरह फिर मैं रन आउट हो गया, उसके बाद फिर उस तरह के रन्स नहीं हो पाए। बॉलिंग में अगर आप देखें तो आप 6 बॉलर खिलाते हैं, आपको ये स्ट्रेटजी मतलब इससे फ़ायदा हो रहा है आपके ख्याल से? देखें, जिस तरह लास्ट मैच में फ़ायदा ज़रूर हुआ था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि फिर से बैठते हैं, कोई प्लान करते हैं डिफरेंट चीज़ें। चले, अच्छी बात यह है कि मुल्तान का लेग ख़त्म हो गया, अब रावलपिंडी में बैठ के प्लान करेंगे। अभी टूर्नामेंट काफ़ी है, इसमें कमबैक का तो बहुत चांस है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें 5 आउट ऑफ 3 विन है हम लोग के और 2 मैचेस हारे हैं हम, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे से जो मैचेस हैं उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दें और मैचेस जीतें। चले, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। और अब शादाब खान, जिसकी टीम तो कुछ गलत कर ही नहीं रही। शादाब, आज टीम में चेंजेस भी की, बैटिंग ऑर्डर भी शफल किया, लेकिन रिजल्ट वही। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, और बस कोशिश यही है कि जो अपनी हमारी बेंच स्ट्रेंथ है उसको भी यूटिलाइज़ करें और जिनकी बैटिंग नहीं आ रही थी उनको भी फॉर्म में लाएं। देखा यही है कि फील्ड में बहुत ही अच्छी है आपकी टीम, इवन आज भी, हालांकि नई तो नहीं लेकिन चेंजेस तो की, लेकिन फील्ड में बहुत ज़बरदस्त अभी तक एटीट्यूड और फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त। जी बिल्कुल, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपना एटीट्यूड सही करना पड़ता है। तो उस वजह से हमारे पास जितने भी यंगस्टर हैं और जितने भी सीनियर्स हैं वो उसको अप्लाई कर रहे हैं, और क्योंकि अगर आप इधर अच्छा करेंगे, अच्छे एटीट्यूड के साथ फील्डिंग करेंगे तो आपको ऊपर जाके ईजी होता है। जो आपने कप्तानी का स्टैंडर्ड सेट किया है, इमाद वसीम आप आएंगे तो उनके लिए मुश्किल होगी ज़रूर। नहीं, माशाल्लाह जितना वो एक्सपीरियंस है तो उनके लिए काफ़ी इजी होगा, क्योंकि जिस तरह टीम अच्छी फॉर्म में है तो काफ़ी, क्योंकि T20 में आपको मोमेंटम चाहिए होता है और मोमेंटम अभी हमारे पास है। चले, वेल प्लेड टुडे एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट एंड दैट्स इट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन डाउन हियर। So the two captains who spoke to Bazin now. Let's have a look at the highlights of the reply from Northern, where they came out to chase. As we've spoken about it, that the total wasn't much, 158 to win, but Ali Imran was the first one to go. Surprise on the very first ball from Puram Shahzad. That was a good ball, top of off stump, but then after that, it was Rohail and Umar Amin who took charge and smartly played their shots during the power play, and after that as well, Umar Amin took charge. He was promoted in the order in the absence of Zishan Malik, pulled the ones which were short of length, and took after the tall Umaid Asif, playing one straight over his head, beating mid-off. Yasir Shah was again also targeted with a couple of sweeps. Umaid Asif was hit not once but twice in the same manner over the head. Yasir Shah slightly short, but that one worked for them as he was caught at long on, and Umar Amin had to depart.
Then Rohel continued about with his business, and he was hitting the ball cleanly. And a couple of moments, the bowlers were frustrated with the efforts that the fielders put in. Rohel was looking $1 million today until he was dismissed. The man of the match today, he was stumped. Yasir Shah spun one away. After that, the hard hitters came in, Asif Ali and Hamad, and the bowlers had no answer to the way they started chasing. They were punishing every loose ball or anything in the slot. They were throwing it out of the park. Anything down the leg side was played to fine leg. And over extra cover, the power of Ahmad Azam was on display, along with Asif, who read the slower ones very well and dispatched them at will. And those sixes were not just any sixes, they were just flying past the inner field, with just going over everyone's head and making it look easy. The fielding was also quite mediocre today, as they were not really supporting the bowlers. That was the final shot. And 7 wickets was the margin by which Northern beat Balochistan today in match 14 of the National T20, and getting themselves a total of 10 points and staying right on top of the table. This is how it is. Balochistan won the toss and it decided to bat first. Not enough on board, 156 for 6. In reply, Northern just spent 3 wickets to get to 158. Won this match by 7 wickets. All right, time for us for a bit of discussion. Let's head down to Savera Pasha and the guests. Total domination shown by Northern today. इतनी डोमिनेशन दिखाई है नदन ने, यानी मुल्तान लेग में कोई ऐसी टीम नहीं है जो हरा सकी है नॉर्दर्न को। अगर हम पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालते हैं तो कंफर्टेबली नॉर्दर्न 5 मैचेस खेली यहाँ मुल्तान लेग में और 5 जीती है, यानी 10 पॉइंट्स के साथ कंफर्टेबली बैठी हुई है। नॉर्दर्न को अगर देखा जाए तो वर्चुअली ये कहना गलत नहीं होगा कि सेमीफाइनलिस्ट एक हमारे सामने तो ज़रूर आ गया है और क्लियरली आ गया है। बात करेंगे इस मैच के हवाले से, बट आगे जब हम पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं तो फिर आज सेंट्रल पंजाब और बलोचिस्तान, इन सबको पेस अप करना होगा। सदर्न पंजाब के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है अब ये सफ़र, क्योंकि मुल्तान लेग में वो एक भी पॉइंट हासिल नहीं कर पाए। So with me I have Shazer Mohammed and Marina Iqbal, and what a performance by Northern Shazer। ऐसा लग रहा है कि अनटचेबल इस वक्त हुई हुई है नॉर्दर्न और बिल्कुल किसी टीम को करीब नहीं आने दे रही है। शादाब खान की कैप्टनसी is on high right now. You're right, Savera. They cannot do anything wrong. Now, it's not how you start off the tournament, it's actually how you finish off the tournament. Last year की undefeated team Northern तो ज़रूर है, इस बार भी 5 मैचेस हो चुके हैं, अभी पिंडी जा रहे हैं, अभी तक अनडिफीटेड चल रहे हैं। आज उन्होंने नई कोशिश भी की, नई बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हुए, अपने बैट्समैन को ऊपर खिलाते हुए, लेकिन उसमें भी उनका हर प्लेयर परफॉर्मर बन गया है अब। एग्जैक्टली मरीना, जोरदार जो कहते हैं ना, अपने कॉन्फिडेंस का ऐलान किया नॉर्दर्न ने आज। जिस तरह बैटिंग ऑर्डर को शफल किया, नीचे के प्लेयर्स को ऊपर खिलाया और ऊपर के प्लेयर्स को नीचे। एबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वही बात मैं बार बार कहती हूँ कि T20 स्पेशलिस्ट नॉर्दर्न के पास बहुत है। और अगेन मैच विनिंग प्लेयर्स, एटीट्यूड ये बहुत मैटर करता है। हर बंदा चाहता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ और मैं टीम को मैच जिताऊँ। ये जो है डिफाइनिंग मोमेंट होता है और ये स्टार्ट होता है कैप्टन से। शादाब खान को आप देखें, ही लव टू बी इन अ चैलेंज, और वो चीज़ नीचे ट्रैवल करती है। एग्जैक्टली चैलेंज जैसे ट्रैवल कर रहा है शादाब खान की उस कैपेबिलिटी की वजह से। बट शेजर, अब एक मसला आने वाला है नॉर्दर्न के लिए, वो मसला होगा इमाद वसीम की वापसी। आपको लगता है मोहम्मद वसीम ये डिसीजन लेंगे कि इमाद वसीम को कैप्टनसी सौंप दी जाए, या फिर ही वुड कंटिन्यू विद शादाब और इमाद एज अ प्लेयर खेलें? I mean, these are good problems to have for any team. Undefeated चल रही है, आपका टॉप प्लेयर वापस टीम में वापस आ रहा है. So whatever decision they make, अभी तक उन्होंने जो भी ज़िंदगी में decision लिया है, is working for them. Now the question is, who do they drop when Imad Wasim coming back into the side? कहाँ पे जगह तो उनकी डेफिनेटली बनती है, लेकिन किसकी जगह, कौन वो अनफॉर्चुनेट प्लेयर होगा जो परफॉर्म कर रहा है लेकिन फिर भी इमाद वसीम के लिए उसको बाहर बैठना पड़ेगा। एग्जैक्टली रोहेल नज़ीर की मैं बात करती हूँ तो मरीना, आज अच्छा लगा देख कर कि वो ऊपर खेले आके, बिकॉज जब हम विकेट कीपर बैट्समैन की बात करते हैं, रिजवान, सरफराज, और तीसरा नाम जो बार बार आता है वो रोहेल नज़ीर का आता है। सो जितना उनको ऊपर मौका दिया जाएगा उतने वो फ्लरिश और पॉलिश होंगे। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जिस तरह एक मैच में उन्होंने 8 बॉलों पे 21 रन बनाए थे, आते ही अटैक किया था, इट टेल्स के कितना कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर कितना बिलीफ है। और आज जिस तरह की इनिंग्स खेलें, अगेन टेक्निक के साथ,
राइट मोमेंट पे अटैक किया, बॉलर्स को चूज़ किया, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और कीपिंग स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हैं. तो आई थिंक ही इज़ अ फुल पैकेज एंड स्पेशली फॉर T20 फॉर्मेट. शेज़र, बलूचिस्तान की बात करें तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हमें निकालना चाहिए इस मैच से. आपको लगता है कि हारिस सुहेल जिस तरह फॉर्म में आ रहे हैं, अकबर ने आज जिस तरह उनका साथ दिया, आर दोज द पॉजिटिव्स फॉर बलूचिस्तान? जी देखें कि ग्रिटी इनिंग तो थी हारिस सुहेल की तरफ से, ऑल्सो अकबर रहमान की तरफ से. पहला मैच, पहली बार बैटिंग मिल रही है. आखिरी मैच के लिए तो बैटिंग का मौका भी नहीं उनको मिला, लेकिन ये था कि उनके शुरू में 3 आउट हो चुके थे. इमाम बीइंग द टॉप रन गेटर गॉट आउट अर्ली, सो बलोचिस्तान रियली हैड टू रिवैम्प देयर इनिंग, प्ले बेटर. सो ये लेके जा सकते हैं कि वो हर गेम में अपनी बेस्ट कोशिश तो कर रहे हैं. कुछ मैचेस में अच्छा खेल रहे हैं, कुछ मैचेस में कुछ गलतियां कर रहे हैं. गलतियों को थोड़े कम करेंगे तो अभी भी वो विनिंग साइड ऑफ थिंग्स हैं और बेहतर होते जाएंगे एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस अलोंग. बलूचिस्तान की सेकंड 11 से प्रमोशन मिली खुर्रम शहजाद को. आज हमने उनको बॉलिंग करते हुए देखा. आज उन्होंने पहला मैच खेला और पहले ही मैच में पहली बॉल पे विकेट हासिल की. मरीना, हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट फॉर the confidence of a youngster like him? Obviously it's really important क्योंकि जब आप नीचे लेवल से ऊपर आ रहे होते हैं and you're playing with the superstars जो कि पाकिस्तान के हैं, to perform there it's all new challenge for you. और मेरा ख्याल है कि जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था, एक परफेक्ट फास्ट बॉलर, आई गेस इट वी वुड लव डेट के बोल्ड किया, ऑफ स्टंप गई. एंड आई थिंक वही बात है कि टैलेंट को बैक करना, अपने ऊपर बिलीफ रखना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई थिंक ही स्टार्टेड ऑफ वेल. बिल्कुल जी. तो मज़ेदार मैचेस हमने यहाँ देखे मुल्तान लेग में, और अब नेशनल T20 का सफ़र आगे बढ़ेगा और हम जाएंगे रावलपिंडी की तरफ. और जब रावलपिंडी में यानी 2 दिन बाद हमें 2 मैचेस फिर से देखने को मिलेंगे रावलपिंडी में. पहला मुकाबला जो होगा वो नॉर्दर्न वर्सेस सेंट्रल पंजाब है, और दूसरा जो मुकाबला होगा वो है सिंध वर्सेस सदर्न पंजाब. यानी 9 अक्टूबर को फिर से यही एक्शन, यही ड्रामा, यही मज़ा आप रावलपिंडी स्टेडियम से विटनेस कर सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे. उम्मीद सिर्फ यही है कि जिस तरह मज़ेदार टूर्नामेंट हुआ है मुल्तान लेग का, उसी तरह यही कंटिन्यू हो मज़ेदार टूर्नामेंट रावलपिंडी में. सारी यही उम्मीदें हैं कि नदन खेले अच्छा और दूसरी टीम्स कोई ना कोई ढूंढे तरीका के किस तरह कोर्ट क्रैक करे, बिकॉज फिर पॉइंट्स टेबल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुल्तान के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो देख रहे थे. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. दिस इज़ ऑल फॉर टुनाइट. टेक केयर. इंशाल्लाह 9 को फिर से हम आप लोगों से मिलेंगे रावलपिंडी स्टेडियम से. टेक केयर एंड गुड नाइट. Fantastic shot again. Haris Suhail gets the maximum. There you go, right on the money. First ball, first wicket. बहुत जोरदार शॉट.